بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام واجد اللہ ہے اور آپ واجد اللہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج میں میاں عاطف قریشی صاحب کے ڈیرے پہ موجود ہوں جو 2015 میں پی ٹی آئی کی طرف سے کرنٹ بورڈ کی طرف سے الیکشن لڑ چکے تھے. یہ 10 حلقے تھے, 10 حلقوں میں سے سب سے زیادہ ووٹ لے چکے تھے. وعلیکم السلام جی. سر, یہ آپ کا حلقہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ ہمارا جو صوبائی حلقہ جو ہے جی, ہمارا صوبائی حلقہ یہ ہے جی, صدر سے لے کے گولڑا موڑ تک اس کے لیفٹ اور رائٹ جتنے علاقے آتے ہیں, جیسے الہ آباد ہو گیا, آپ کا کچا اسٹاپ ہو گیا, ڈو گجرا, مسریال, سہام, کوہ نور مل, یہ سارا ایریا جتنا بھی اس کے گنجان آباد سارا اس کے اندر آتا ہے جی. جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی ان لوگوں نے بہت زیادہ دعوے کیے تھے. اس میں جو سب سے اہم دعوے تھے وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے تھے. اگر اس علاقے کو آپ دیکھیں تو یہاں پہ صرف 2 گورنمنٹ اسکول ہیں. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ہم نے جو دعوے کیے تھے انشاءاللہ ہم ان پہ پورا بھی اتریں گے. ابھی جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس سے چند قدم دوری ہم نے ایک پرائمری اسکول تھا, اس کی ایک نئی بلڈنگ ڈبل سٹوری بنا دی ہے, جو کہ انشاءاللہ یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے رک گئی ہے, بن چکی ہوئی ہے, اس کا خالی اوپننگ ہونی ہے. اس کے علاوہ آپ ہاسپٹل کی بات کر رہے تھے, وران ڈپو آپ نے دیکھا ہوگا پشاور روڈ کے اوپر ہے, بہت بڑی جگہ ہے وہ. تو اس کے اندر بھی ہم نے ایک ہائی اسکول اور کالج اور ایک ہاسپٹل بنانے کا ارادہ کیا, اور مجھے امید ہے کہ اسی سال مطلب کہ اس کی سنگ بنیاد بھی رکھ دی جائے گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ اور آپ لوگوں نے کیا کیا چینجز کیے اس اپنے حلقے میں؟ ہماری گورنمنٹ سے آئی ہے, ہم نے سب سے زیادہ دیکھیں جی اپنا ہمارے حلقے میں جو ہمارے تھانے ہیں, ٹھیک ہے, ان میں ہم نے کافی زیادہ توجہ دی ہے. جو کہ پہلے ایک رشوت کا بازار گرم ہوتا تھا, یا لوگوں کو تھانے میں جاتے وقت جیسے مسئلہ پریشانیاں ہوتی تھی, خوف ہوتا تھا عام پبلک کے اوپر پولیس کا, وہ ہم نے کافی حد تک جو ہے نا اس کو ختم کیا ہے. اور کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے, ہم نے اپنے حلقے کے اندر علیحدہ ٹیمز بنائی ہوئی ہیں, جس میں ہم نے یہ پٹوار کا مطلب کہ محکمہ مال ہو گیا, پولیس ہوگی, وابڈا ہو گیا, سوئی گیس ہوگی, یا جو بھی آپ کے کینٹ بورڈ ہو گیا, علیحدہ ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں. ہماری ایک ورکنگ ٹیم ہے اور علیحدہ 2-4 بندے ہم نے اس پہ چھوڑے ہوئے ہیں, تاکہ کسی کا بھی ہم نے بلکہ اپنے آفس کے اندر ایک پراپرلی ایک لسٹ لگائی ہوئی ہے جس کے اوپر ان کے نام اور نمبر مینشن کیے ہوئے ہیں. ہمارے پاس کوئی بھی سائل آتا ہے وہ آپ کا وہاں سے نمبر وغیرہ بھی دیکھتے ہیں, ہم خود بھی اس کو گائیڈ کرتے ہیں, وہ لوگ پراپرلی ہر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, مینیج کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے ایک دوسرا بھی بہت زیادہ جو دعویٰ کیا تھا تجاوزات کا, اگر آپ اس حلقے میں دیکھیں, اسپیشلی اگر آپ اسٹیج 3 میں دیکھیں تو جو رہائشی علاقے ہیں وہاں پہ لوگ دکان بنا چکے, کوئی پارکنگ بنا چکے, تو یہ کب تک ختم ہوگا؟ دیکھیں یہ تو کافی ٹائم کا پرابلم ہے, ابھی کا تو ہے نہیں ہے. یہ تو بہت ٹائم سے مطلب کہ بگڑا ہوا علاقہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ پہ گاند کے ڈھیر ہیں, کچی روڈیں ہیں, اور کوئی اس کا حال ہی نہیں ہے جس حلقے میں ہم ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ہم نے درست کر لی ہیں, کرتے جا رہے ہیں, کافی ٹائم لگے گا. بہت ساری روڈز ہیں وہ آپ نے خود بھی دیکھی ہوں گی کہ ہم نے نئے روڈ بھی بنا دی ہیں, اور جہاں پہ تجاوزات کی آپ بات کریں کافی حد تک وہ بھی ہم نے کیا ہے. اور نیکسٹ بھی اس پہ ہماری میٹنگز ہوئی ہیں 1-2, تو انشاءاللہ اس پہ بھی آپ کو اچھا رزلٹ نظر آئے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ جو بہت زیادہ مسئلہ میں نے دیکھے نا, جو بڑے بڑے روڈ ہے آپ کے پاس, اسپیشلی اگر آپ آئی جی پی روڈ کا چسٹاپ والی سائڈ پہ دیکھیں, اس کے اوپر پیدل پل بھی نہیں ہے, اور وہاں پہ روز آپ کو ایکسیڈنٹ نظر آئے گا. اگر روز نہ ہو تو اگلے یا دوسرے دن آپ کو لازمی وہاں پہ ایکسیڈنٹ نظر آئے گا. دیکھیں جی, میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابھی ہم جو ہے نا, ابھی تو ہمیں اتنا ٹائم ہوا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر ہم ابھی تک کم از کم 25-30 کروڑ روپیہ لگا چکے ہیں اپنے حلقے کے اندر. وہ آپ نے خود بھی وزٹ کیا ہوگا, ہم آپ کو خود بھی دکھا دیں گے. تو انشاءاللہ جو ہمارے پاس لوگ آتے رہتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں, تو اس مطابق ہم جلد سے جلد, ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کے کام کریں. ہم زیادہ ڈیلے بھی نہیں کرتے. ہمارے پاس جو بھی بندہ آتا ہے, ہماری یہی ہوتی ہے کہ دوبارہ نیکسٹ اس کو آنا نہ پڑے, کہ ہم اس کے پاس پہنچے ہوں. کیونکہ ہمارے کپتان کا ایک وہ تھا کہ ہم لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کی گھروں تک جائیں, ان کے مسئلے ہم پورے مطلب کہ حل کریں. تو اسی طریقے سے میرے پاس جو میرے اپنے حلقے کے لیے فنڈ آیا, اور جس میں میں نے لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ سنے, دیکھے, اور میں کوشش یہ ہوتی دوبارہ بندہ میرے پاس نہ آئے. میں ان کی دہلیز پہ گیا ہوں میرے حلقے کے اندر, آپ گھوم کے چیک کر سکتے ہیں, ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے گھر گھر جا کے لوگوں کے جو ہمیں ایک یہ امانت ہی ہوتی ہے نا, تو ہم نے الحمدللہ اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور پہنچائے بھی ہیں. لوگ شکایت کرتے ہیں جو پنڈی ڈویژن ہے اس میں یہ 12,000 روپے کسی کو ملنے نہیں ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی کر رہے ہیں, لوگ شکایت کر رہے ہیں, ظاہری بات ہے, آپ کو پتہ ہے. حالانکہ اس ٹائم پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے, اس ٹائم تو ایک قوم بننے کی ضرورت ہے. اور اس ٹائم پہ تو میرے حال میں جو سیاست کرتا ہے میں تو اس کو
अल्फाज नहीं है। इस टाइम तो मिल जुल के काम करना चाहिए। और थोड़ी देर पहले बल्कि आपने ख़ुद भी देखा होगा, यहाँ पे एक बंदा आया था तो उसके पैसे निकले हैं। उसको मैंने बताया कि उसका सेंटर का नूर कॉलेज बनाया, मिल बनाया, और तो स्कूल है। तो काफ़ी अभी मेरे पास, बल्कि पहले दिन को अक्सर ये डेरा खुला होता है, हम बैठे होते हैं, लॉकडाउन की वजह से इतना बाहर जाना नहीं होता, और लोग हमारे पास आते रहते हैं क्योंकि हम मैसेज वगैरह करते हैं और उनके दोबारा मैसेज आता है कि भाई आप अपने करीबी सेंटर से ले लें। तो मिल रहे हैं लोगों को पैसे। तो ऐसा नहीं है कि लोगों को पैसे, हाँ जो नहीं अहल नहीं है उसको तो नहीं मिलेंगे, जो अहल है उनको मिल रहे हैं। तो आप अपने आवाम को क्या कहना चाहते हो, जो आपके हल्के के जो लोग? मैं तो अपने हल्के के लोगों को कहता हूँ कि जो मुखियर हज़रात हैं, जिनको अल्लाह पाक का दिया हुआ है, वो बिल्कुल ना देखें हुकूमत दे रही है नहीं दे रही है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। क्योंकि हमें इस टाइम, मैंने पहले भी कहा, एक कौम सबको मिल के कौम बन के चलेंगे तब हम इस कोरोना से जान छुड़ा सकेंगे। क्योंकि बड़ा मुश्किल टाइम है, क्योंकि हमारा जो दिहाड़ीदार तबका है, जो छाबड़ी वाले हैं, रेडी वाले हैं, वो बेचारे बिल्कुल जो है ना मायूस होकर घर बैठ के घरों तक बंद है। तो इस तरह उनके घर का चूल्हा भी बंद है। तो हमने ख़ुद बल्कि तकरीबन ये जितना टाइम कोरोना का गुजरा है, हमने घरों तक जाके राशन पहुंचाया है। हमने प्रॉपर अपने इस हल्के में लिस्टें ली हैं लोगों से, आईडी कार्ड्स वगैरह लिए हैं। वो जस्ट इसलिए लिए हैं कि हम लोगों के घरों तक पहुंचाएं उनको। जो लोग देखें, श्वेत पोश लोग भी हैं ना, बाकी जो एक तबका ऐसा भी है जो कि हर जगह पहुंच जाता है, लेकिन मैं श्वेत पोश की बात कर रहा हूँ, ताकि उनके घरों तक। और मेरा तो अपनी हल्के की आवाम, बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम को एक ही अपील है कि अपने दाएँ बाएँ देखें, जिनको अल्लाह ने दिया हुआ, जिनके पास है, वो अपने दाएं बाएं देखें यार। कोई बंदा, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो किसी से मांग नहीं सकते बेचारे, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अपने दाएं बाएं देखें। मुश्किल टाइम है, जब हम एक कौम बन के हम इससे लड़ेंगे तो इंशाल्लाह हम कोरोना को भगा देंगे। आपने इनकी बातें सुनी और आइए आपको दिखाते हैं कि वो जिस इलाके में काम कर रहे हैं उनका काम आपको अहमद कुरैशी। कोरोना के टाइम आप लोगों ने क्या खिदमत किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमसे जो हो सका हमने काफ़ी बढ़कर की अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने दोस्तों यारों के साथ मिल के हमने काफ़ी सारा फंड इकट्ठा किया है और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के घरों तक हमने ना राशन पहुंचाया। आवाम को क्या कहना चाहते हैं? बस ये है कि अल्लाह पाक इस बीमारी से सबकी जान छुड़ाए। तो जब तक इंशाअल्लाह कोरोना है तो हम इंशाअल्लाह लड़ेंगे। सरदार अमजद जी। ये आपको कौन साल का है? जी मैं PP 15 से हूँ, चीफ कोऑर्डिनेटर। ये कोरोना में आप लोगों ने लोगों के साथ क्या हेल्प की है? जी कोरोना में हमने अपने पूरे हलके में अल्हम्दुलिल्लाह 3000 फैमिली को हमने राशन प्रोवाइड किया है और लोगों के घर में जाके दिया है राशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपसे अपने दोस्तों के साथ मिल के ये सारा किया। यानी जो बाकी लोग आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे, मतलब है कि ये इल्ज़ाम जो है इनके गलत हैं? जी बिल्कुल गलत है इल्ज़ाम। हमने पूरे हलके में 3000 फैमिली को अपनी जेब से, अपने दोस्तों से मिल के डोनेशन इकट्ठा करके सब लोगों को दिया। मैं आप ज़रा बताइए। जी मैं जैसा कि आपको मैंने डेरे पे बैठे हुआ बताया था, हमारे तकियाती काम तो जारी हैं। जैसे आपने क्वेश्चन किया था मुझसे कि आपने लोगों के साथ जो वादे किए थे वो कहाँ तक पहुँचे हैं। आप तो कुदरती अचानक ही मेरे पास आए थे, मैंने तभी आपको कहा था आएँ आप चले, मैं आपको दिखाऊँ हमने हल्के के अंदर क्या काम करा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई 30 करोड़ रुपये का काम हमारा हो चुका है। तो नेक्स्ट बजट भी हमारे पास आने लगा है। तो हमारे हल्के के अंदर जो कि 20-20 साल पुरानी गलियाँ थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पक्की कराई हैं। और ख़ास तौर पे जो मेन रोड है उन पे हमने ज़्यादा तवज्जो दी। और या कोई गरीब गुरबा लोग हैं जिनकी अप्रोच सियासती हुक्मरानों तक नहीं है, जो हमेशा उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह उन सब की रोडें पक्की होंगी। और इंशाअल्लाह हम अपने हल्के में कोई ऐसा काम नहीं छोड़ेंगे, हम ना भी होंगे इंशाअल्लाह लोग हमें याद करेंगे। पानी का भी शिकायत कर रहे हैं? जी पानी की जो बात कर रहे हैं वो जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है, इंशाल्लाह हमने जो पेशावर रोड से खानपुर डैम का पानी आ रहा है उसको हमने इधर से हम ईदगाह के अंदर एक बहुत बड़ा टैंक बना हुआ है, उसके अंदर उसको हमें पाइपलाइन बिछानी है। बल्कि वो तो काम स्टार्ट था,
कोई मेरे ख्याल में 100-150 फुट तक तो उसने लाइन बिछा दी थी ठेकेदार ने, और कोरोना की वजह से वो काम स्टॉप हो गया। और इंशाल्लाह वो काम जल्द से जल्द हम करवाएंगे। उसके बाद पूरी सिहाम और इसके गिरदोनवा में जितने इलाके हैं इंशाल्लाह पानी का मसला ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, इस काम के बारे में? देखें जी, ये लोगों का बुनियादी हक है, क्योंकि एक काउंसलर का काम होता है गली नाली की सियासत। तो ये आतिफ कुरैशी साहब इस वार्ड से पहले काउंसलर का इलेक्शन भी लड़े हैं यहाँ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह PP 15 में जो उमर तनवीर भट्ट साहब हैं, उन्होंने इनको फोकल पर्सन भी अपना रखा हुआ है इस वार्ड में। तो ये बेहतरीन लोगों की जो ज़रूरत की मेन गलियाँ थी, तो ये सब के तकरीबन काम हो चुके हैं कम्प्लीट। हाँ भाई, इसके बारे में क्या कहना चाहते जी हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आतिफ भाई का और उमर भट्ट साहब का और MNA हमारे जो हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारा जो दरीना जो मेन स्ट्रीट थी जहाँ से डोग सईदा और पेंच बाटा और चाकरा और इस तरफ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ से इसका फ़्लो था। चले बाद लोग तो गाड़ियों में गुजर जाते थे, लेकिन जो बच्चे और औरतें थी उनके लिए यहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मसला सॉल्व हो गया, हमें बड़ी खुशी है। आतिफ साहब ने यहाँ बड़ा माशाल्लाह अपना वो पूरी एफर्ट से इसको काम को पाए तकमील तक पहुँचाया, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बाकी भी जो हमारे मसाइल हैं, छोटे मोटे पानी का मसला है, वो भी उम्मीद है इंशाल्लाह, उन्होंने कहा कि ये भी इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। बड़ी खुशी है जी हमें, बहुत शुक्रिया। अंकल आप इसके बारे में क्या कहते हैं, ये काम जो हो रहा है? इंशाल्लाह जी बहुत ये इतने अरसे के बाद हमारी इतनी खुशी हुई है कि आतिफ साहब ने हमारा लोगों का बहुत आसान अफजाई किया, और उसके बाद मजे का बहुत ही अंधेरे में दिन को गिरते थे, लेकिन ये बहुत अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी है, ये हमारी गली पक्की होगी है। बहुत ही खुशी। आतिफ भाई का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आतिफ भाई ने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया इस वार्ड में 10 ने कोई गली ऐसी नहीं वार्ड में 10 में भी है कि कोई कैसी कच्ची हो। ख़ास तौर पर शाम की रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, माएँ बहनें चल ही नहीं सकती थी पैदल। अल्लाह का शुक्र आतिफ भाई ने दिन रात करके इसको फ़ौरन कंप्लीट किया है। आतिफ भाई का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आतिफ भाई का, उमर तनवीर भट्ट साहब का, कि उनकी बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने ये मेन रास्ता बनाया है। हम लोग तो गुजरने से भी जो है ना गुजर भी नहीं सकते थे, कपड़े प्रीत हो जाते थे। मेन ये सड़क है इसकी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गई है। अल्लाह इनको जैसे खैर दे, अल्लाह इनको खुश रखे। हम यही कहते हैं इनकी मेहरबानी है। पहले हुकूमत से तो हमें कुछ नहीं मिल सका, गंदे रास्ते, कपड़े गंदे, कोई बंदा बाहर नहीं आता। अल्लाह इसका भला करे और हमारा सब आम मसले हल कर दिए। पानी का मसला है वो भी इंशाल्लाह हल कर देंगे, अल्लाह इनको खुश रखे। जी मियां आतिफ कुरैशी साहब का बहुत शुक्रिया जी, जिन्होंने हमारे महल्ले में तरक्यात के काम सारे किए। मुखालफात बहुत सारी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा काम हुआ है। हम मियां साहब का बहुत शुक्रगुजार है, जिन्होंने हमारी गलियों के तमाम काम जो है वो बहुत अच्छी तरीके से कर दिए। होनी थी इंसाफ की जीत, हो गई इंसाफ की जीत। होनी थी इंसाफ की जीत, हो गई इंसाफ की जीत। ये मुबारक दिन हमको है दिखाया, तेरा शुक्र करूं ऐ मेरे खुदाया, तेरा शुक्र करूं ऐ मेरे खुदाया। होनी थी इंसाफ की जीत, हो गई इंसाफ की जीत। होनी थी इंसाफ की जीत, हो गई इंसाफ की जीत। ये मुबारक